will explain lesson 3. The name of the lesson is The Wheat is Cheaper First. फर्स्ट ये जो हम रीड करेंगे अभी ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट आपको फोर्थ लेसन में मिलेगा. Now you will listen carefully this. One evening, Ravi and Ashok went to see David Smith. David's father, Mr. Smith, is an Englishman. He has traveled widely and he is now working in India. Ashok and Ravi met David only a few days ago, but three boys now meet almost every day. That evening, the boys started talking about stories. Ashok said, Ravi reads a lot of storybooks. Perhaps he wants to become a writer or a storyteller. एक शाम को रवि और अशोक डेविड स्मिथ को देखने गए थे. डेविड के फादर मिस्टर स्मिथ एक इंग्लिशमैन थे. पहले वे इंडिया से बाहर काम करते थे और अब वे इंडिया में ही काम कर रहे हैं. अशोक और रवि डेविड से कुछ दिन पहले ही मिले थे, लेकिन अब वो तीनों बॉयज रोज मिल रहे हैं. शाम को बॉयज स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे. अशोक ने बोला, रवि तुमने बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ रखी है, पर शायद वो एक राइटर या स्टोरी टेलर बनना चाहता है. रवि, एवरीबडी लाइक्स स्टोरीज. आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज, डोंट यू? डेविड, डेविड, यस ऑफ कोर्स. व्हाई डोंट you tell me one? Ravi, I wanted you to tell us a good story. Please tell us one. David, I will some other day, but today you must tell me a good Indian story. Ravi, all right, I will. I spent my last summer vacation with my grandfather in his village. He used to tell me at least one story every night. I will tell you one of those stories today. Ashok, what is the story called? Ravi, The Wheat is Cheaper. David, cheaper than what? Ravi, that you must tell me after listening to the story. This is how it goes. रवि ने कहा, सभी को स्टोरीज बहुत पसंद है, मुझे अच्छी स्टोरी सुनना पसंद है. क्या तुमको भी? डेविड, डेविड ने बोला, हाँ, क्या तुम मुझे एक स्टोरी सुना सकते हो? रवि ने कहा, मैं तुमसे एक अच्छी स्टोरी सुनना चाहता हूँ, पहले तुम मुझे एक सुनाओ. डेविड ने कहा, मैं कभी दूसरे दिन सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें आज मुझे एक इंडियन स्टोरी सुनानी पड़ेगी. रवि ने कहा, ठीक है, मैं सुनाता हूँ. मैंने अपनी पिछली गर्मी की छुट्टियाँ अपने दादाजी के यहाँ बिताई थी. वे मुझे रोज एक स्टोरी सुनाते थे. आज मैं तुम्हें उनमें से एक सुनाऊंगा. अशोक ने पूछा, स्टोरी किसके बारे में है? रवि ने कहा, द व्हीट इज चीपर. डेविड ने कहा, चीपर क्या? रवि ने कहा, मैं ये तुम्हें स्टोरी सुनाने के बाद में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है. लॉन्ग अगो इन एन इंडियन टाउन there lived a merchant. He was very greedy. He used to go to town to buy or sell large quantities of grain, and even on his way to these towns he thought of making money. One day, when he was going to a town to buy some grain, he saw a farmer some distance away. Here, he thought, is an opportunity to get some money out of this simple village. So he walked quickly up to him and started being friendly with him. He said to the farmer, when I was young, I used to go a long distance alone, but as I am getting old, I would like a companion with me always. As we are going the same way, it is good for us to be together. We shall enjoy each other's company. बहुत समय की बात है, एक गांव में एक सौदागर रहता था. वो बहुत लालची था. जब वो गांव-गांव में जाकर अधिक मात्रा में गेहूं खरीदता और बेचा करता था, और रास्ते में जब वो गांव में जाता था, पैसा बनाने के बारे में सोचा करता था. एक दिन वो जब गांव जा रहा था अनाज खरीदने के लिए, उसने एक किसान को देखा. उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, मैं इससे कुछ पैसा ले सकता हूँ. और वो उसके पास जल्दी जल्दी गया और फिर उसने उसको अपना फ्रेंड बना लिया और बातें करने लगा. उसने फार्मर से कहा, जब मैं छोटा था तब मैं दूर दूर तक चला जाता था, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे एक साथी की ज़रूरत पड़ती है. जैसे हम दोनों साथ में जा रहे हैं, ये हम दोनों के लिए अच्छा है.
हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। The farmer said, "Thank you. I have never seen you before. I believe you are a stranger." No, the merchant said, "I am a merchant and I have been here before, but I travel to many places. But how can I be a good companion to you?" The farmer asked. "I am only a simple villager and you have seen a lot of this world. But perhaps it will be all right if you do all the talking. I shall listen to what you say." "This is not fair. I can't do all the talking. I have an idea. Each one of us can tell the wildest possible tale. If I cast doubt on your story, I will pay you 100 rupees. But if you cast doubt on mine, you will have to pay me an equal sum of money. How do you like the idea?" "Fine," said the farmer. "And so is it a bargain?" The merchant said. "Yes, it is," said the farmer. "Now let's begin. As you are the wiser of us two, you must begin." The merchant began his story. किसान ने थैंक यू बोला। "मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मुझे यकीन है कि तुम एक अजनबी हो।" मर्चेंट ने बोला, "नहीं, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ।" किसान ने पूछा कि मैं तुम्हारा अच्छा साथी कैसे बन सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा गांव वाला हूँ। तुम दुनिया में ऐसे लोग देख चुके होगे, लेकिन ये शायद ये सही हो सकता है कि तुम बोलते रहो और मैं सुनता रहूँगा। यह सही नहीं है। मैं पूरी बातें नहीं करूँगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों में से एक एक को एक संभव बात बतानी होगी। अगर मैं तुम्हारी स्टोरी पर डाउट करूंगा तो मैं तुम्हें 100 रुपीज़ पे करूंगा, और तुम मेरी स्टोरी पर डाउट करोगे तो मैं भी तुम्हें उतना ही पैसा दूंगा। तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा?" किसान ने कहा, "बहुत अच्छा।" मर्चेंट ने कहा, "क्या ये सौदा है?" किसान ने बोला, "हाँ, चलो अब हम शुरू करें।" किसान ने बोला, "हम दोनों में से तुम समझदार हो, इसलिए तुम शुरू करो।" मर्चेंट ने स्टोरी शुरू की। "As I was going along this road one day, I saw a merchant with a long train of camels. There were 101 camels, and each of them was loaded with large quantities of grain." Farmer said, "I have seen trains of camels myself, and they are very often loaded with very heavy goods." Merchant added, "All the camels were tied together with ropes, nose to tail. It was a long train, about half a mile." "Good. It must have been a fine sight." And then asked the farmer. Merchant continued. "And then a kite flew down onto the first camel and cried and carried him off. But as all the camels were tied together, all the other camels were carried up with it. What do you say to that?" जैसे ही मैं एक दिन रोड पर जा रहा था, मैंने देखा कि एक मर्चेंट बहुत सारे कैमल के साथ में जा रहा था, जिन पर बहुत सारा अनाज लदा हुआ था। अब किसान भी यही बोला कि मैंने भी कैमल देखे हैं जिन पर बहुत सारा अनाज लदा हुआ था। फिर मर्चेंट ने बोला कि सभी कैमल रस्सियों से बंधे हुए थे, नाक से लेकर पूंछ तक। ये लंबी ट्रेन थी जो कि हाफ माइल तक थी। किसान ने कहा, "ठीक है, इसके आगे क्या हुआ बताओ?" मर्चेंट ने शुरू किया और कहा, "और तब फर्स्ट कैमल पर चील उड़ी और नीचे आ गई और वो उसके साथ जाने लगी। जो सारे कैमल थे वो एक दूसरे से बंधे हुए थे, इसलिए वो चील उन कैमल को उड़ाकर ले गई." Farmer said, "It must have been a very strong kite. Do you doubt it?" asked the merchant. "No. Why, why should I?" said the farmer promptly. Now the merchant was disappointed, but he decided to make another attempt to get the 100 rupees. He continued, "A princess was sitting in her garden, and a maid was
combing her hair. The princess happened to look up at the sky. Just then, the kite I spoke about was flying in the sky right above her head. The first camel gave the bird kite such a kick that it let go him, and the train of camel fell right into the princess' left eye. किसान ने कहा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चील होगी। मर्चेंट ने पूछा, क्या तुम्हें शक है? किसान ने कहा, नहीं, मुझे क्यों शक होगा? मर्चेंट बहुत उदास हो गया था। मर्चेंट ने फिर कोशिश की किसान से पैसा लेने में। मर्चेंट कंटिन्यू रहा और एक प्रिंसेस जो गार्डन में बैठी थी और उसकी जो मेड यानी उसकी जो नौकरानी थी वो उसके बालों में कंघी कर रही थी। जैसे ही प्रिंसेस ने आसमान में देखा तो उसके सर पर एक चील उड़ रही थी। जैसे ही फर्स्ट कैमल ने चील को लात मारी, सारे कैमल फ्री हो गए और सारे प्रिंसेस की लेफ्ट आई पर गिर गए। पुअर गर्ल, देयर वर 101 animals and they must have given her a lot of pain. And then the merchant did not know what to say, but they made a last attempt. Then the princess started crying with pain. Her maid stopped combing her hair. She carefully lifted the princess' eyelid and removed all the camels one after the other from her eye and put them into her pocket. That was a good maid, said the farmer. And then the merchant could not think of anything more, so he said, this is all and is the end of my story. Now it is your turn. जब उस पुअर गर्ल पर इतने सारे एनिमल गिरे तो होंगे तब उसे कितना दर्द हुआ होगा। अब मर्चेंट को पता ही नहीं था कि वह उसके आगे क्या बोले। उसने अपना आखिरी प्रयास भी कर लिया। जो प्रिंसेस थी वो दर्द के कारण रोने लगी और उसकी नौकरानी ने भी कंघी करना बंद कर दिया। उसने प्रिंसेस की आंखों की पलक को उठाया और एक एक कर केमल को बाहर निकालना शुरू किया और सारे केमल को अपनी पॉकेट में रख लिया। किसान ने कहा, बहुत अच्छी नौकरानी है, पर फिर उसके बाद क्या हुआ? मर्चेंट को कुछ नहीं सूझा तो उसने बोला, सब कुछ यही है, अब तुम्हारा टर्न है। अब किसान क्या स्टोरी सुनाएगा आगे, वो हमको इसके सेकेंड पार्ट यानी लेसन 4 में मिलेगी। आप इस लेसन की समरी को अच्छे से राइट करेंगे और इस लेसन के मीनिंग फाइंड आउट भी करना है आपको। थैंक यू।